गजा में 2 साल से जारी इसराइली जारियत के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली के हवाले से आज का दिन अहम साबित हुआ है। अमरीकी सदर ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे पर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो गया है। इस मुआहदे के तहत हमास ने तमाम 20 जिंदा इसराइली अरगमालियों को रिहा कर दिया है, जबकि इसके बदले में इसराइल ने भी फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल शुरू कर दिया है और आज फलस्तीनी कैदियों की एक बड़ी तादाद को आज़ाद कर दिया गया है। इसी दौरान अब से कुछ देर पहले मिस्र के शहर शर्म अल शेख में खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए एक अहम बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, जिसकी मुश्तरका मेज़बानी अमरीकी सदर ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने की। इससे पहले आज सदर ट्रंप ने इसराइल का दौरा किया, जहां उन्होंने इसराइली पार्लियामेंट से खिताब किया। इसराइल के मुख्तसर दौरे के बाद अमरीकी सदर ट्रंप मिस्र पहुंच गए हैं, जहां दुनिया भर के रहनुमा गजा के हवाले से होने वाले बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलास में शरीक हैं। इस तकरीब के आगाज़ में सदर ट्रंप और हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात में सालिसी करने वाले ममालिक के सरबराहान ने अमन दस्तावेज़ पर दस्तखत किए, जिनमें मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी, कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी और तुर्क सदर एर्दोआन शामिल थे। दस्तखत करने के बाद अब अमरीकी सदर ट्रंप इस वक्त शुरा से खिताब भी कर रहे हैं। खिताब हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद तफसीलात आपको बताएंगे। His Royal Highness Crown Prince Mohammed, Saudi Arabia, special friend of mine. He's come so long and so far, and he's doing a fantastic job for his country. And I want to just thank him. And His Highness Sheikh Mohammed of the United Arab Emirates is here. Where? He's here someplace. Well, oh, he's not here. But he's here in spirit, I can tell you that. And he's been another one. He's been absolutely incredible, and we appreciate it very much. And His Majesty King Abdullah of Jordan, and thank you very much, King Abdul of Jordan. He's here. Thank you. Thank you. Thank you very much. सदर ट्रंप का खिताब आप देख रहे हैं। दस्तावेज़ पर दस्तखत करने से पहले सदर ट्रंप ने कहा कि हम एक ऐसी दस्तावेज़ पर दस्तखत करने जा रहे हैं जिसमें बहुत से ज़ाब्ते, क़वानीन और दीगर अहम निकात शामिल होंगे। ये एक निहायत जामे मुआहदा है, इससे खित्ते में अमन कायम होगा। वाज़ेह रहे कि मिस्र में होने वाली इस अहम कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी के अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी, बरतानिया के वज़ीर आज़म केर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मिर्ज और कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और तुर्क सदर एर्दोआन समेत 20 ममालिक के सरबराहान शरीक हैं। और इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे हैं सदर ट्रंप के बाद। आइए आपको सुनाते हैं। प्रेसिडेंट Fathi al-Sisi of Egypt, Majesties, Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good evening. Well, I would say today is one of the greatest days in contemporary history, because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. My very dear brother, President Tayyip Erdogan, His Majesty, King Abdullah,
and of course my very dear brother Mohammed bin Zayed of UAE, and of course my very dear brother Crown Prince of Saudi Arabia. And he has also been very, very helpful and contributed very valuably in this wonderful peace process. Ladies and gentlemen, I wouldn't want to take more of your time. Suffice it to say, had it not been for this gentleman, not only, who knows, India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level. Who would have lived to tell what happened? And similarly, here in this part of the world, in the Middle East, Mr. President, your valuable contribution along with President Sisi, I think history will remember in golden words. I wouldn't say more, except God bless you, God give you long life to serve like this for all time to come. Thank you very much. So beautiful. Thank you very much. Wow. Thank you very much. Very kind. Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man, of Indonesia. President, come in. इस सारी सूरत हाल में आज हमास ने ट्रंप के अमन मंसूबे के पहले मरहले पर अमल करते हुए 2 साल बाद इसराइल के तमाम बचे हुए जिंदा यरगमालियों को रिहा कर दिया है और आज गजा में मौजूद बाकी तमाम 20 जिंदा यरगमालियों को इसराइल वापस पहुंचा दिया गया है और 28 मुर्दा यरगमालियों की लाशें अब भी गजा में मौजूद हैं। ताहम अमरीकी सालिसी में तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास उनकी वापसी पर भी रजामंद हो चुकी है, जिनमें से मुतअद्दिद की लाशें आज इसराइली हुक्काम के हवाले कर दी गई हैं और बाकी लाशों को भी जल्द इसराइली हुक्काम के हवाले कर दिया जाएगा। जबकि मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर 250 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल भी जारी है जो तवील और उम्र कैद की सज़ाएं काट रहे थे। इसी तरह उन 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की रिहाई भी हो गई है जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल ने बगैर किसी इल्ज़ाम के गजा से गिरफ्तार कर लिया था। इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के मनाज़िर सामने आ रहे हैं और आप अपने सामने इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज सुबह हमास ने गजा के जनूबी इलाके खान यूनुस में पहले 7 इसराइली यरगमालियों को इंटरनेशनल रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। उसके चंद घंटे बाद इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की कि मज़ीद 13 यरगमालियों को भी उनके हवाले कर दिया गया है। जबकि गजा के इलाके खान यूनुस में इसराइल की जानिब से रिहा किए जाने वाले 1700 के करीब फ़लस्तीनी कैदियों के इस्तकबाल के लिए हज़ारों फ़लस्तीनी जमा हुए और उन्होंने इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले अपने प्यारों का इस्तकबाल किया और वो इस्तकबाल के मनाजिर आपने देखे, इस स्क्रीन्स पर देखे कि कितना इस वक्त जो गजा के अवाम हैं वो अमन के लिए तरस रहे थे, कितना उनके ऊपर मजालिम ढाए गए और उनके जो कैदी थे जब वो वापस आए तो उनका इस्तकबाल किया गया। इस सारी सूरत हाल में आज अमरीकी सदर ट्रंप एक अहम दौरे पर इसराइल पहुंचे थे और ये दूसरी बार सदर मुंतखब होने के बाद उनका पहला इसराइली दौरा था। इस मौके पर सदर ट्रंप ने पहले इसराइली यरगमालियों के अहले खाना से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो इसराइली पार्लियामेंट पहुंचे जहां इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर रहनुमाओं ने के खिताब के बाद सदर ट्रंप ने एक खिताब किया। सदर ट्रंप के खिताब के मौके पर इसराइली पार्लियामेंट में जो मनाजिर देखने में आए उनमें एहतजाज भी शामिल था, उनका इस्तकबाल भी शामिल था। जहाँ उनका पुरजोश और शानदार इस्तकबाल हुआ, पार्लियामेंट के बेशतर अरकान कई बार उनके एजाज़ में अपनी नशिस्तों से खड़े हुए, भरपूर तालियां बजाकर उनका खैर मकदम किया। इसराइली वज़ीर आज़म, इसराइली सदर, पार्लियामेंट के स्पीकर और अपोजिशन लीडर ने सदर ट्रंप को इसराइल का अजीम तरीन दोस्त करार दिया। ताहम सदर ट्रंप के खिताब के दौरान ऐवान में हंगामा आराई भी देखने में आई जब इसराइली पार्लियामेंट के 2 अरकान ने एहतजाज करते हुए नारेबाजी की कोशिश की। ताहम इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने फ़ौरन मुदाखलत करते हुए दोनों को ऐवान से बाहर निकाल दिया और उनके बैनर जब्त कर लिए। एहतजाज करने वाले रुकन एमन ओदा ने बाहर निकाले जाने से पहले पार्लियामेंट में एक बैनर बुलंद किया हुआ था जिस पर लिखा था कि फ़लस्तीन को तस्लीम करो। Listen to the